Dynamic IP address. This is very important for the exam and the real life scenario. So introduction, what is DHCP and IP addressing? So in the architecture of the modern network, every device requires a unique identifier known as a IP address, like internet protocol to the communicate. A dynamic host configuration protocol DHCP act as a network automated traffic controller. So इसमें आपको सब पता भी चल जाएगा कि DHCP होता क्या है, DNS क्या कैसे होते हैं, और स्टैटिक वर्सेस डायनामिक IP एड्रेस कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें. Sorry. So without a DHCP, network administrator would face a monumental task of manually configuration every smartphone, laptop, and server that connects to the network. The fundamental choice in network design is between static IP address, which is fixed and permanent location, and dynamic IP address, which is temporary and lease assignment. So understanding the distinction is critical for the network stability, as a misconfiguration can lead to the IP conflicts, connectivity loss for the critical service, and security vulnerabilities. This guide provides a comprehensive technical comparison, configuration workflow, and decision framework for the choosing the right addressing strategy. सो अब हम बात करते हैं स्टैटिक वर्सेस डायनामिक आईपी एड्रेस डेफिनेशन एंड कोर डिफरेंसेस. टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इट इज़ एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द थ्री मेन mode of address assignment, like true static, DHCP reservation, and dynamic pool. So true static means a manual defining IP address. So the IP is hard coded onto the device's network interface card, like NIC. The device does not contact a DHCP server. It simply unused its present. So when it's come to the dynamic pool, like DHCP pool, the device requests an IP from the server. The server grants the next available IP from a defined pool for a limited time. The IP may change after a reboot. And what is DHCP reservation is a hybrid approach. The device uses a DHCP, but the server is configured to recognize the device's MAC address and always assign in the same specific IP address. The following table outline the operational difference across 10 critical dimensions. So first one वो है future है. So like method, like we can say assignment method. So true static manual means configured manually on the device OS, and when on the dynamic pool it's automatic via DORA process, and in the DHCP reservation is automatic mapped to the MAC address. So on configuration point it's a decentralized every device, and for the DHCP pool it's a centralized DHCP server, और DHCP reservation में आएगा centralized DHCP server. और तीसरे फीचर की बात करते हैं वो है IP persistence. सो इसमें मैनुअल की बात करें तो परमानेंट अनटिल मैन्युअली चेंज, एंड DHCP पुल की बात करें तो टेम्पररी चेंज ऑन लीज एक्सपायरी, एंड DHCP रिजर्वेशन की बात करें तो परमानेंट लॉजिकल फिक्स्ड. ओके, अब कॉन्फ्लिक्ट रिस्क की बात करें तो मैनुअल में हाई ह्यूमन एरर पॉसिबिलिटी है, वाइल DHCP में जीरो सर्वर मैनेज पूल है, जीरो पॉसिबिलिटी है ह्यूमन एरर की. और DHCP रिजर्वेशन करें तो इसमें लो सर्वर प्रिवेंट रीअसाइनमेंट है. वैसे भी आप मैनेजमेंट एफर्ट का भी देख सकते हो, DNS इंटीग्रेशन का भी देख सकते हो, पोर्टेबिलिटी का भी देख सकते हो, ऑडिटिंग एंड लॉगिंग का भी देख सकते हो, नेटवर्क डिपेंडेंसी का भी देख सकते हो, टिपिकल एनवायरनमेंट का भी देख सकते हो. और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में आपका ईमेल ID लिख दीजिए, मैं आपको ये PDF मैं आपको ईमेल कर दूंगा. अभी मेन चीज़ पे आते हैं कि स्टैटिक IP एड्रेस एंड डायनामिक IP एड्रेस का प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है. तो पहले तो प्रोन्स पे हम फोकस करें कि स्टैटिक IP एड्रेस का प्रोन्स ये है कि वो ज़्यादा रिलायबल है. लाइक सर्वर सर्विसेज आर ऑलवेज फाउंडेड एट द सेम एड्रेस क्रिटिकल फॉर द सर्वर, वाइल डायनामिक IP एड्रेस का प्रोन्स है ऑटोमेशन, लाइक जीरो टच कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एंड यूजर.
स्टैटिक आईपी एड्रेस का सेकंड प्रॉन्स है कि डीएनएस इंडिपेंडेंस है, यानी कि कैन बी एक्सेस बाय द आईपी इवन इफ डीएनएस फेल। और डायनामिक आईपी एड्रेस का प्रॉन्स है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, लाइक ग्लोबल चेंजेस, एग्जांपल न्यू डीएनएस सर्वर आर पुश्ड ऑटोमेटिकली। और स्टैटिक आईपी का प्रॉन्स है स्टार्टअप स्पीड, नो डीएचसीपी हैंडशेक लाइक डोरा प्रोसेस लेटेंसी एट द बूट टाइम। और इसमें डायनामिक आईपी एड्रेस का प्रॉन्स है एफिशिएंसी, अनयूज्ड आईपी एड्रेस रिटर्न टू द पूल, ऑप्टिमाइजिंग एड्रेस स्पेस। और स्टैटिक का एक फ़ायदा है कि वो रिमोट एक्सेस है, यानी कि सिंप्लीफाइड वीपीएन एंड फायरवॉल रूल्स विच ऑफन रिली ऑन फिक्स्ड आईपीएस। और डायनामिक आईपी एड्रेस का एक प्रॉन्स है कि वे मोबिलिटी, यानी कि डिवाइसेस ऑटोमेटिकली अडेप्ट टू द नेटवर्क दे कनेक्ट टू। और स्टैटिक आईपी एड्रेस का एक और प्रॉन्स है कि ट्रबल शूटिंग, यू कैन ईजियर टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक डिवाइस ड्यूरिंग अ नेटवर्क स्कैन। और डायनामिक आईपी एड्रेस का प्रॉन्स है कि रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, द सर्वर एक्ट एज अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ प्रिवेंटिंग डुप्लीकेट्स। वैसे भी आप और लास्ट वाला देख सकते हो कि स्टैटिक आईपी एड्रेस का लेजेस सपोर्ट क्या है कि एसेंशियल फॉर द ओल्डर डिवाइसेस दैट डू नॉट सपोर्ट डीएचसीपी वेल। और डायनामिक आईपी एड्रेस का एक प्रॉन्स है कि सिंपलर इन्वेंटरी, नो नीड टू ट्रैक आईपी टू डिवाइस मैपिंग मैन्युअली। अगर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट हो तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप एक इंटरव्यूअर हो तो आपके लिए भी स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनामिक आईपी एड्रेस का प्रोज एंड कॉन्स जानना बहुत ज़रूरी है। अब कॉन्स की बात करते हैं तो स्टैटिक का कॉन्स प्रॉब्लम है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, यानी कि वी रिक्वायर्ड अ मैनुअल ट्रैकिंग स्प्रेडशीट टू अवॉइड द डुप्लीकेट। कोई सिस्टम इसमें ट्रैकिंग नहीं कर सकती, हमको मैनुअल करना पड़ेगा। और डायनामिक आईपी एड्रेस का कौन सा है कि कनेक्टिविटी ब्रेक्स, लाइक एसएसएच एंड आरडीपी, वो एक्टिव कनेक्शन बार बार ड्रॉप हो जाता है अगर आईपी एड्रेस चेंज हो जाए तो। और स्टैटिक में है कि स्केलेबिलिटी, यानी कि बिकम्स अनमैनेजेबल इन नेटवर्क विद इन लेस देन 50 डिवाइसेस। और इस साइड देखें तो डीएनएस रिलायंस, यानी कि यूज़र कैन नॉट रिली ऑन मेमोराइजिंग आईपीस, डीडीएनएस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनल होस्टिंग। स्टैटिक का कौन सा है कि कॉन्फ़िगरेशन एरर, टाइप्स इज सबनेट मास्क और गेटवे कैन आइसोलेट द डिवाइस। और डीएचसीपी डिपेंडेंसी ये बहुत बड़ा कॉन्स है डायनामिक आईपी एड्रेस में, वो है कि इफ़ द डीएचसीपी सर्वर फेल्स अ न्यू डिवाइस कैन नॉट ज्वाइन द नेटवर्क। और इस साइड कौन से कि रिगिडिटी, यानी कि चेंजिंग नेटवर्क स्कीम रिक्वायर अ टचिंग एवरी डिवाइसेस। एंड डायनामिक का कौन सा है कि सिक्योरिटी रिस्क, लाइक रोग डीएचसीपी सर्वर कैन हाईजैक ट्रैफिक लाइक मिट्स अटैक। ऐसे भी आप देख सकते हो और भी कौन से है। और पर हम प्रैक्टिकल यूज़ केस एंड रिकमेंडेंस के बारे में आते हैं कि अगर आप सिनेरियो बेस है कि अगर आपका डिवाइस और कोर सर्वर है लाइक एक्टिव डायरेक्टरी, डीएनएस एंड डीएचसीपी है, तो आप ट्रू स्टैटिक आपको रिकमेंड करती है सिस्टम, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर एब्सोल्यूट persistence. If DHCP fail, this server must remain online to restore the network. और अब आप एप्लीकेशन सर्वर की बात करें, यानी कि वेब और डीबी सर्वर, तो उसमें भी रिकमेंड है कि ट्रू स्टैटिक, तो वो भी रीजनेबल है कि एंश्योर स्टेबल एंड पॉइंट फॉर द इंटरनल APIs एंड फायरवॉल रूल्स। इट प्रिवेंट्स अ सर्विस इंटरप्शन ड्यूरिंग लीस्ट रिन्यूएबल फेलर। अगर आप नेटवर्क भी का स्विच और राउटर की बात करें तो उसमें भी रिकमेंड करता है ट्रू स्टैटिक, बिकॉज अ मैनेजमेंट इंटरफेस मस्ट बी एक्सेसिबल एट द नॉन IPs फॉर द इमरजेंसी रिकवरी। ओके, अब बात आती है प्रिंटर एंड स्कैनर डिवाइसेस की, तो उसमें रिकमेंड है DHCP रिजर्वेशन, यूजर कंप्यूटर मैप प्रिंटर बाय IP और होस्ट नेम। रिजर्वेशन एंश्योर स्टेबिलिटी while allowing central config updates.
जैसे प्रिंटर और स्कैनर में है वैसे सीसीटीवी कैमरा में भी DHCP रिजर्वेशन रहता है, बिकॉज NVRS नीड फिक्स IPS टू रिकॉर्ड स्ट्रीम्स। और रिजर्वेशन अलाउ इजी रिप्लेसमेंट ऑफ कैमरास विदाउट मैनुअल री-आईपिंग। वैसे भी वोइप फ़ोन है वो DHCP सर्वर उसमें भी रिकमेंड करता है, क्योंकि सिंप्लीफाइज क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पॉलिसी बेस्ड ऑन द IP रेंज एंड सिंप्लीफाइड कॉल मैनेज कॉन्फ़िगरेशन। वैसे भी इंटरनेट ऑफ थिंग काइंड के जो भी डिवाइस है उसमें भी DHCP रिजर्वेशन करते हैं, क्योंकि दिस डिवाइस ऑफन हैव अ पुअर इंटरफेस फॉर द मैनुअल स्टैटिक एंट्री। रिजर्वेशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी विदाउट द हसल। अगर हम बात करें कि एंड यूज़र की लैपटॉप और डेस्कटॉप पे, तो उसमें रिकमेंड है डायनामिक, बिकॉज यूज़र मूव फ्रीक्वेंटली। डायनामिक असाइनमेंट हैंडल रोमिंग बिटवीन वाईफाई एंड इथरनेट सिमलेसली। वैसे भी मोबाइल डिवाइस में भी यही है, गेस्ट नेटवर्क में भी डायनामिक है, और क्लाउड वर्चुअल मशीन में भी डायनामिक है, पर वो ऑर्केस्ट्रेटेड है। लाइक क्लाउड एनवायरनमेंट use SDN like software defined networking. IP address are assigned dynamically at the instance. Sorry, पानी पी लेता हूँ। ओके, अभी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हाउ टू सेटअप स्टैटिक एंड डायनामिक IP एड्रेस। तो ये चीज़ मैं आपको थियोरी क्लास में नहीं दिखा सकता, मैं कभी आपको प्रैक्टिकल क्लास में ऐसी चीज़ दिखाऊंगा। पर अगर आपको खुद को प्रैक्टिकल करना है तो अगर आपके पास ये PDF होनी चाहिए, क्योंकि इसमें देखो सारा स्टेप है। लाइक आप मेरे को email ID आपका कमेंट कर दीजिए, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आप वेरी फर्स्ट टाइम ये लेक्चर में है तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकूँ। देखो ऐसे थियरिकल है, कैसे प्रैक्टिकल करते हैं। अगर आपको यूज़ करना है तो आप मेरे को ईमेल एड्रेस भेजिए, मैं आपके ईमेल पे ये PDF दे देता हूँ। देखो पहले सेटिंग अप DHCP डायनामिक स्कोप विंडोज सर्वर में, फिर क्रिएटिंग अ DHCP रिजर्वेशन कैसे क्रिएट करते हैं, फिर IP एड्रेस लाइक कॉन्फ़िगर मैन्युअली स्टैटिक IP एड्रेस कैसे करते हैं क्लाइंट साइड पे, ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें ये है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्वेश्चन लाइक क्रिटिकली, सो इफ़ DHCP सर्वर डाइज मस्ट दिस डिवाइस स्टे ऑनलाइन, यस और नो। आइए आपके लिए एग्ज़ाम के ज़रिए के लिए आप खुद भी ये चीज़ सॉल्व कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन जवाब तो मैंने दे दिए, पर अगर आप खुद से करना चाहते हो तो। और ट्रबल शूटिंग एंड पिटफॉल्स, लाइक IP एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका सिम्टम्स क्या होता है कि इंटरमिटेंट कनेक्टिविटी, लाइक डुप्लीकेट IP, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वार्निंग दे देती है। पर इसका सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन ये है कि वी नीड टू चेक स्टैटिक IP एड्रेस अगेंस्ट DHCP स्कोप, एक्सक्लूड स्टैटिक IPs फ्रॉम द पूल। दूसरा इश्यू ये है कि स्टेल DHCP लीजिंग, लाइक ये सिम्टम्स का कैसे दिखते हैं कि स्कोप रन आउट ऑफ IP एड्रेस, न्यू डिवाइसेस कैन नॉट, अगर कोई नया डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहे तो ये सिम्टम्स आपको दिखेंगे। पर इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमको लीज टाइम है वो हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। वैसे भी रोग DHCP सर्वर का इश्यू आ सकता है, तो उसका सिम्टम्स क्या है कि डिवाइसेस गेट रॉन्ग, लाइक गेटवे एंड DNS IP ट्रैफिक रीडायरेक्टेड। तो हम क्या कर सकते हैं कि DNS स्नूपिंग जो हमारा है स्विच के ऊपर, उसको हम वायर शार्क में स्कैन करके इनेबल कर सकते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि मैक रैंडोमिनाइजेशन, यानी कि उसका सिम्टम्स ये रहेगा कि रिजर्वेशन स्टॉप वर्किंग ऑन मॉडम लाइक iPhone एंड एंड्रॉयड, उस पर रिजर्वेशन स्टॉप कम करना बंद हो जाएगा। तो सबसे इजी सॉल्यूशन क्या है कि अपना प्राइवेट वाईफाई एड्रेस है उसको हम डिवाइस पे डिसेबल कर देते हैं। अगर हमने रॉन्ग सबनेट मास्क दिया है तो उसका सिम्टम्स क्या रहता है कि डिवाइस कैन पिंग लोकल लैंड बट कैन नॉट रीच द इंटरनेट। अगर आप पिंग करोगे तो पिंग तो हो जाएगा बट नेट नहीं आएगा। अगर आप ping.8.8.8.8 करोगे तो पिंग तो हो जाएगा बट नेट नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन क्या है कि हमको मास्क मैच राउट जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा कि हम /24 है या /26 है।
तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप IP कॉन्फ़िग करके रिलीज़ कर सकते हो, फिर IP कॉन्फ़िग न्यू कर सकते हो, ऑल कर सकते हो, ये भी चीज़ मैंने दिया है। और सिक्योरिटी कंसिडरेशन भी है उसमें, लाइक ये है कि IP असाइनमेंट इज़ अ वेक्टर फॉर द नेटवर्क अटैक्स, सिक्योर योर स्ट्रेटजी विद दिस मेजर। अगर हमको सिस्टम सिक्योर करना है तो हम फर्स्ट तो क्या करेंगे कि DHCP स्नूपिंग, like configure switch to the blocked DHCP offer packets from the unauthorized ports. This prevents user from plugging in their own routes and distributing the network. Second is IP source guard, like prevent IP spoofing by verifying that traffic from a port matches the DHCP lease assigned to the port. Static IP bypass, malicious user may manually set a static IP to the bypass NAC, like network access point. User 801.1x authentication to the validate the user, not just the IP address. ओके और सेगमेंटेशन भी है, ऐसे ऑडिट ट्रेल्स भी है और लिस्ट प्रिविलेज भी है। और यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, लाइक ओके मैं ही पढ़ देता हूँ। लाइक should server ever use dynamic IP address? Generally no. However, in cloud native environments like AWS or Azure, server get dynamic IP address, but these are managed by the cloud fabric and DNS is automatically updated. In on-premises hardware stick to static. दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैन रिजर्व एन IP by host name instead of MAC? तो आंसर है कि स्टैंडर्ड DHCP वर्क ऑन MAC एड्रेस ऑन द लेयर 2, while some advanced IPM solutions map by host name. The underlying protocol require the MAC address. अगला क्वेश्चन है कि वाई डज माई प्रिंटर IP कीप चेंजिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में आ सकता है, और अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हो तो ये इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इट्स लाइकली सेट टू द डायनामिक विदाउट अ रिजर्वेशन एज सुन एज द लीज एक्सपायरी और द प्रिंटर रिबूट इट मे गेट अ न्यू एड्रेस, सेट अ DHCP रिजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग शुड अ DHCP लीज बी? लाइक अगर वायर्ड ऑफिस है तो 8 days, अगर वाईफाई ऑफिस है तो 24 आवर्स, अगर गेस्ट वाईफाई है तो 1 से 4 घंटे, और या उससे शॉर्टर भी हो सकता है। Oh, again interesting question, like 192.168.0.0 divided by 24 is better than 10.0.0.0.24. So answer is technically they are the same RTFs 1918 private range. However, 10.x.x.x offer a significant more subnet and making it better for the scalable business network. ओके अगर देखो ये लास्ट चीज़ है कि रूल्स ऑफ थंब मैट्रिक्स, ये है यूज़र ट्रैफिक, यूज़र ट्रू स्टैटिक है, और यूज DHCP रिजर्वेशन है फॉर प्रिंटर, IoT, कैमराज, एप्लीकेशन एंड सर्वर। अगर आपको यूज डायनामिक पुल करना है, अगर आपके लैपटॉप तो आप यूज़ कर सकते हो आपके लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप, फ़ोन और गेस्ट के लिए। तो फाइनल टिप है कि डॉक्यूमेंटेशन इज़ योर लाइफ लाइन। If you assign a static IP, record it in an IP address management tool or a central spreadsheet immediately. An undocumented static IP is a future conflict waiting for the happen. Thank you so much and keep subscribe to my channel for the new video. And अगर आप चाहते हो कि मैं ये टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू।